Good evening, everyone. Before starting, yesterday a very disturbing and very horrific news has come from Sepa District Hospital. I think everyone is familiar with what I'm referring to. The Sepa horror, which has taken place yesterday. कल सेपा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 लोगों का हत्या किया गया है और 6 लोगों को ग्रीवियसली इंजर किया गया है. So this is one of the most disturbing and nerve-wracking news that has come lately from Arunachal Pradesh, which is very saddening, and I deeply and condemn it in the strongest terms. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. And then from here, the government, the administration, I hope they learn and put in place proper security everywhere in all the hospitals, day in and day out. So my deepest condolences to the family of the bereaved and all those victims of this particular horror that has taken place. And I urge the government, the law authority, to take the strongest of the measures and to give the accused the exemplary punishment that he deserves. Once again, my deepest and sincere condolences, and I also pray and hope that they find strength during this time. Also, a speedy recovery to the people, to the victims who has suffered injuries. So, without delaying much, ज़्यादा time waste नहीं करते हुए, let's get it to the point of today's this live session. आज का live session जो है बहुत छोटा रखेंगे, at max 10 to 15 minutes, because I understand that the issues जिसको लेकर मैं pursue कर रहा था कुछ दिनों से on behalf of all the aggrieved students regarding the APPSC Combined Civil Services Examinations, जो prelims का date है उसको conflict को लेके. So shockingly, yesterday a press release was given by the APPSC, that is countersigned by Parul Gaur Mittal, IRS, Secretary APPSC. So this particular press release dated 14th of November 2024, which was yesterday. This has come after a day, एक दिन के बाद, जिसमें हम एक joint representation, एक historic joint representation submit किया था APPSC में, जिसमें हम लोगों ने voluminous representation secretary और सारा chairman and including all the members को submit किया था with all the documentary supporting documents, जो बोलता है कि ये जो particular जो conflict of dates है क्यों justified है. So just a day after that ये press release आया. इस प्रेस रिलीज में they have categorically said it, but clear terms में, शब्दों में इन्होंने बोला कि commission will go ahead with the APPSC का जो preliminary date है as scheduled, which is that is on 15th of December next month. Today is 15th, मतलब अगले महीना का ठीक आज के दिन एग्जामिनेशन प्रोसीड करेंगे, ये उन्होंने कहा है. I actually appreciate the press release given by the APPSC. At least they have taken cognizance and given an official statement. But the confusion here is, यहाँ एक confusion ये है कि ये जो press release है, this is with regards to the first representation that I have submitted on 28th of October 2024. तो 28 को मैंने एक representation submit किया था, जिसमें जब बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बोलना शुरू किया कि इसमें ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये डेट का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये इनकन्वीनियंसेस हो रहा है, तो इस चीज को देखने के लिए जब बोला था, तो इसी चीज को लेके मैंने एक सिंपल सा एक ऐसा अपील, एक छोटा रिप्रेजेंटेशन डाल के रखा था वहां में 28 का अक्टूबर को, जिसमें मैंने बस
यूनिवर्सिटीज का एग्जामिनेशन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके मैंने उनको जताया था, which I think is still a good enough reason that the commission should have considered, but then they thought it otherwise. उनको लगा कि ये पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस जो है एक इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस है, एंड क्योंकि मैंने लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था तो उनको लगा कि एक पॉलिटिकल एंगल से भी हो सकता है, सो इसको एंटरटेन करने के लिए इट माइट नॉट बी द वाइसेस्ट थिंग टू डू। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके लेके आए जिसमें आप सब एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, एंड जितना सिग्नेचर्स है और एस्पायरेंट्स का उसको कलेक्ट करके लेके आने के लिए बोले थे। तो अकॉर्डिंगली दैट आई हैव सबमिटेड ऑन 13th of November 2024, दैट वाज परसों के दिन, और ये प्रेस रिलीज आया कल दिन को। तो यहाँ में बहुत लोग मुझे फोन करके या फिर टेक्स्ट ओवर द टेक्स्ट बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि इज दिस डेट कंफर्म। तो से टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि not necessarily the date will be extended or postponed, but this is a sufficient, we have a sufficient ground, sufficient material and sufficient content, reasons as to why the date should be shifted. And by shifting I do not mean कि postponement 15, 20, 50, 40 2-3 महीना के लिए होना है, not like that. It has to be shifted accordingly or deferred accordingly or adjusted for the convenience of the academic students who will be in a month-long examination process in their term and semester examinations. So this particular press release, this has created more confusion than clarity. तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये लाइव सेशन है, इसी को मैं थोड़ा सा बात करना था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि कमीशन की तरफ से क्लैरिटी आओ, लेकिन ये जो एक क्लैरिटी देने के चक्कर में उन्होंने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो आप लोगों ने अगर वो प्रेस रिलीज देखा हुआ बोलने से, पैरा नंबर 1 में आप लोग देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, द कमीशन हैज रिव्यूड द सोल रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स। बराबर, पहला जो रिप्रेजेंटेशन डाला था उसमें मैंने सबके बिहाफ में अपना नाम बस डाल के मैंने वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था, विच इज जिनको उनका कहना था कि ये एक अकेला इंसान का रिप्रेजेंटेशन लग रहा है, उनका ग्रीवेंसेस लग रहा है, और आप पॉलिटिकल नेचर का भी हो सकता है, तो आपका इस ग्रीवेंस को एड्रेस करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। फेयर इनफ, मेक सेंस। देन उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली जो मुझे बोला था कि रिप्रेजेंटेशन लेके आना है, तो जो मैंने किया हुआ है, तो इसमें ये बोल रहा है कि दिस कमीशन हैज रिव्यूड द सोल रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फॉर पोस्टपोनमेंट एग्जामिनेशंस। देन व्हाट अबाउट द क्लैरिफिकेशन एंड द consideration which you have sought and we have submitted the second joint representation, which was signed by 1054 aspirants across the state and the representative of RGU, which is the RGU Student Union and then the RGU Research Scholars Forum. And this was a joint representation that was being sent, and with all the signatures sent in hard copies attached there. So I hope the team will look into this and they will accordingly sit and deliberate. इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे कि अभी जो रिप्रेजेंटेशन जो कंप्रेहेंसिवली आया है उसमें जो पॉइंट्स बताया है उसमें कितना वो है चीज को सच्चाई है, आप लोग दैट इज अपॉन योर विजडम। बट देन जैसे मैंने पिछले बार भी बोला है कि ओल्ड एस्पायरेंट्स को आपका तरफ से एक मेरे तरफ से एक मैसेज पहले से है, एक्सटेंशन होना नहीं होना वो कमीशन के ऊपर है, गलती इन लोगों की तरफ से हुआ है, रीजंस है करने का, लेकिन आप लोग उस उम्मीद पे नहीं बैठना है, क्योंकि एक्सटेंशन अगर 10-15 दिन का हो भी जाता है बोलने से पढ़ाई आपको बराबर का करना है। अगर एक्सटेंशन नहीं भी होता है तभी भी पढ़ाई करना है। तो ये एक्सटेंशन जो हम लोग मांग रहे थे, डेफरमेंट जो मांग रहे थे,
ये इसलिए था ताकि एकेडमिक स्टूडेंट्स को भी एग्जामिनेशन के बीच में ही उनको एग्जामिनेशन देना ना पड़े, विच क्रिएट्स मोर मेंटल ट्रॉमा। तो दैट वाज द रीजन ये डेफरमेंट को मांगने के लिए। तो आई होप द ये जो कमीशन है, दे वुड कम आउट विद मोर क्लैरिटी to the subsequent representation that we have submitted. So this is all about the press release का जो confusion था, वो confusion इसको लेके था कि क्या सब कुछ हो गया है। Then ये जो press release है, ये clearly जो पहला representation था उसका response है। जो second में हम submit किया उसका response अभी आना बाकी है। Meanwhile क्योंकि time निकल रहा है, तो anxiety और frustration और confusion एस्पायरेंट्स में बढ़ ही रहा है। तो इसमें जो है जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मल तरीका से हम लोगों को जो प्रोसीजर होता है जो करना था वो हमने किया। एंड देन इन माय लास्ट ब्रीफिंग आई हैव आल्सो सेड कि फ्रॉम हियर ऑन आई हैव डन माय पार्ट। फ्रॉम यहां से आगे जाके कोई भी एस्पायरेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को आगे टेकअप करेगा या फिर इसमें से कोई एग्रीड कैंडिडेट जो है इसको कोर्ट कचहरी में लेके जाएगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरा नहीं रहेगा, वो सोनली एपीपीएससी का रहेगा। क्योंकि रूल्स का उल्लंघन आपका तरफ से हुआ, केयरलेसनेस आपका तरफ से हुआ, इनकॉम्पिटेंसी आपने दिखाया। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कोऑपरेट फ्रॉम आवर साइड एंड यू हैव आल्सो ट्राइड टू प्रोवोक अस बाय डिप्लॉइंग so many police forces there। एक प्रोवोकेशन का काम भी किया है आप लोगों ने, but which is still okay। but then आज और कल का दिन as soon as this press release has come out, फिर बहुत स्टूडेंट लोग मुझे फोन करके या फिर बहुत लोग फोन करके बोल रहे थे कि इसको लीगली परस्यू करना नहीं करना। I have said it in my clear terms। If someone takes it forward from here legally and challenges this in the court, possibility ये है कि ये examinations अगर केस एडमिट हुआ, then ये 10-15 दिन के लिए defer नहीं होगा, ये 4-5 महीना के लिए भी हो सकता है। क्योंकि कोर्ट लीगल प्रोसीजर जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज होता है और उसमें जो है टाइम लगता है डिस्पोजल में। एंड जो सच में एग्रीव्ड है वो सीरियस है एग्जामिनेशन को लेके, आप उसका राइट्स को कर्टेल कर रहा है, अपना रूल्स को वायलेशन कर रहा है। आई एम श्योर आउट ऑफ ऑल ऑफ बहुत लोग अगर एग्रीव हो रहा है, 40-50,000 का नंबर्स है, कोई ना कोई अगर आगे गया देन ये सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो कमीशन आप जो एग्जामिनेशन का आपको ये प्रेस रिलीज में आपने बोला कि सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन का लिस्ट है जिसको आपको कंडक्ट करना है, एवरीथिंग विल बी स्टॉल्ड। इस चीज को ही अवॉइड करने के लिए आई हैव ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द एस्पायरेंट्स एंड कमीशन टू हैव ए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव combined civil services examination this time। But then it is your wisdom that you have decided otherwise, or if you are still not willing to consider। तो कल से मुझे बहुत सारा फोन्स आके डिस्कशंस के लिए बहुत लोग ये बोल रहे कि इसको लीगली परस्यू किया जाए। तो आई एम नॉट द एनिमी ऑफ कमीशन इन वेरी क्लियर टर्म्स, रादर आई एम ए फ्रेंड ऑफ एन एफिशिएंट कमीशन because I have fought for this institution's transparency and its efficiency for a very, very, very long time। तो आज का डेट में भी बस मेरा एक ही चीज है कि कमीशन में जो भी एग्जामिनेशन होता है फ्री फेयर तरीका से होना है, किसी को डिप्रिवेशन फील नहीं होना, और इशू जेन्यून है तो उसको एड्रेस करके आप हैसल फ्री एग्जामिनेशन कंडक्ट करो। तो व्हेन पीपल नाउ स्टार्ट कॉलिंग मी टू टेक अप दिस थिंग्स इनटू द लीगल डोमेन, कल से मैंने बहुत लोगों को बस ये बोल के रखा है कि मेरा तरफ से मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। नाउ द प्रेरोगेटिव इज ऑन यू एंड देयर आर सो मेनी एग्रीव्ड एस्पायरेंट्स
जिन्होंने अपना सिग्नेचर भी डाला, 2 दिन के अंदर में 1000 सिग्नेचर्स कलेक्ट करना इज नॉट सिंपल थिंग टू डू. So tomorrow if someone goes forward, then I would not have any say, because if you need any kind of material documentation from my side, I'm more than willing to cooperate and give it to you. But then I have also told, जो भी मुझे फोन करके इस चीज को बोल रहे थे, कुछ लोग परस्यू करने के लिए भी बात किया, मैंने उनको यही बोला कि कमीशन में जो लोग बेच रहा है, दिस आर नॉट लाइक दे आर वेरी बहुत इनकेपेबल है, ऐसा भी नहीं है, सेंसिबल लोग भी है. तो कमीशन को थोड़ा सा टाइम दो. हमने 13 को ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया. मैं समझता हूँ कि आपका टाइम निकल रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है, आपका एकेडमिक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में और तकलीफ हो रहा है. But I have given the benefit of doubt to the commission still at this stage and told these people कि आप लोग एक दिन जैसे और वेट कर लीजिए. I'm sure the commission में ये डिस्कशन जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसका डिस्कशन चल रहा होगा. देयर आफ्टर भी अगर नहीं करता है बोन्स, इफ दिस इज जो पहला जो सोल रिप्रेजेंटेशन बोल के इन लोग जो कंफ्यूजन क्रिएट करके एक बहाना बना के जो दिया है, अगर यही है बोलता है बोलने से भी वो कमीशन का स्टैंड क्लियर है तब तो अगर ऐसे हुआ तो आप लोग यू आर ओपन टू प्रोसीड. अब जाके जाइए, जिसको कोर्ट केस करना है कीजिए, क्योंकि आपका राइट्स तो वालिद हो दे रहा है. तब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करो बोल रहा है उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा. कमीशन जो जल्दी जल्दी करना चाह रहा है उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा. लेकिन अब एक का राइट को आप होल्ड करेगा, दूसरा का राइट को अनड्यू एडवांटेज देगा उसको, ये भी नहीं हो सकता. सो दिस इज योर ओन पर्सनल कॉल. So and also one of the thing is that if you really want this thing to be addressed before without dragging into the legal domain, which I have tried from my end, if you really are going for the legal discourse, there are more than 1,000 students who have put their signatures within 2 days, and if you go ahead, I'm sure there are many willing aspirants deprived who will be in the receiving end, who feel deprived at this point. They will give you come out and support you. And personally, whatever things or cooperation that you require from my side, that we can look into. But then going to the court is your personal call. So I would have no say, but rather than only give the entire responsibility to the commission and its member. And there is one thing, I have been receiving some texts and some messages, or I'm getting all these things that a few of the people, they are if I should say threatening me, if they are trying to threaten me or something, like they have said that they will go for FIRs and all and defamation against me. I mean, for what? For what? I'm a measured person who knows his own rights and who knows what he is speaking, for whom he is speaking, and up to what limit I'm speaking to. So ये जो FIR करके डिफेमेशन सूट जो मुझे बोल रहा है, भूल जाओ ये सब चीज. If you really think you have substance that can attract me in this, I would say willingly go ahead. ये जो टैक्टिक्स है मेरे से अप्लाई मत कीजिएगा. अगर आपको FIR लगाना, एक क्यों लगाना है, 1000 लगाइए. I have no issues. I have said what I believe and I did. Why? To highlight the incompetency of the APPSC, which I have been doing for a very long time. And this is my personal commitment. इसको you cannot dictate and no one can dictate. अगर किसी का खामिया को बताने के लिए आप मुझे
डिफेमेशन का सूट डालेंगे, मुझे एफआईआर करेंगे, आई एम मोर देन विलिंग, आई वेलकम। यू शुड ऑल्सो प्रूव कि मैंने क्या बोला, हाउ इज दैट डिफेमेशन, हाउ इज दैट, आई विल फाइल अ काउंटर एफआईआर अगेंस्ट दोज पीपल इफ दैट इज द केस। अभी तक मैंने कुछ करना शुरू ही नहीं किया। सो ये डराने धमकाने का काम जो आप लोग बंद कीजिए। जहां में प्रॉब्लम्स है उसको रिजोल्व करने के लिए एमिकेबली जो हो सकता था, आई हैव प्लेड माई रोल एज ए बैलेंसिंग एजेंट, कि दोनों का ग्रीवेंसेस जो है मीटअप हो जाए। सो डू नॉट ट्राई एंड प्ले दिस सिली टैक्टिक्स विथ मी। दिस इज माई clear message, whoever is on the other side who thinks they can, like succumb me in those pressures with such threatenings. Those things are not happening, and I have not even started my part to be actually. So you should also know that you are also aware of what you are saying and what you are doing. So that's all the things. सो टुमारो गोइंग फॉरवर्ड, अगर कोई इसको लीगली परस्यू करता है पुलिस से, हैंड्स फोर्थ, अगर कमीशन जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन को एडेयर नहीं करता है, देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू प्रोसीड फॉर द लीगल थिंग्स। हम रोक के रखा है इन लोगों को कि अभी थोड़ा सा टाइम दे दो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यू आर श्योर कि इन लोग एड्रेस नहीं करने वाला है, देन यू आर मोर देन वेलकम टू गो अहेड। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है। अगर कल को एग्जाम रुक जाता है तो उसका 100% ब्लेम और रेस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन को ही जाएगा। राइट्स आपने वायलेट किया, रूल्स आपने वायलेट किया, प्रोसीजरल लैप्स आपने किया। अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कस करके उसको रिजॉल्व कर सकता था, जो कि आप लोग करने के लिए रेडी नहीं है। सो ये आपका ही किया जा रहा है, कमीशन का ही किया जा रहा है। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू से, एंड हैंसफोर्थ यहाँ से मुझे ये लीगल चीज के लिए ओपिनियन सीख करने के लिए मुझे और कॉल मत कीजिएगा। इफ यू आर रेडी, इफ यू बिलीव, इफ यू थिंक, एंड इफ यू आर एक्चुअली डिप्राइव, प्लीज गो अहेड। और मैंने कल भी बोला, आज जो मुझे फोन किया, आज तक इनको मैं यही बोला कि थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, दे माइट बी वर्किंग ऑन इट। बट अगर कल तक या फिर परसों तक नहीं आता है बोलने से, फील फ्री टू गो अहेड। दिस इज माई message. This I wanted to put it out loud and clear. And also I would wanted to extend my best wishes to all the aspirants who are preparing for this particular examinations, whether it is 15th of December or 5th of January or any other day. Make sure your preparation is on point. Be prepared while you stay hopeful. Do not get carried away also. So I wish all the aspirants all the best. You hope for the best, but prepare for the worst. Anything can happen. Henceforth, or everything will be taken up by some deprived candidates, most probably. If it is a legal discourse or it is in the democratic movement, mass agitation, whatever forms, I shall not be held responsible for anything henceforth. I'm repeating this again and again कि सारा responsibility जो है कमीशन को ही जाएगा। कमीशन का एडामेंसी, कमीशन का इनकॉम्पिटेंसी, इन लोगों का इग्नोरेंस के कारण से हमेशा प्रॉब्लम होता है, और ये जो है हमेशा एस्पायरेंट्स को डिवाइड कर देता है। और एक चीज आप लोग को जाते जाते ये भी बोल देगा कि ये जो एस्पायरेंट्स का जो इशू है वो हमेशा बहुत क्रिटिकल होता है, बिकॉज एस्पायरेंट्स लोग बहुत वोलाटाइल होता है, कुछ बहुत सेल्फिश होता है, कुछ ओपन माइंडेड होता है। इसीलिए हमेशा एग्जामिनेशन में कुछ इश्यूज आता है तो देयर आर वन सेक्शन जो
मत करो मत करो बोलता है, दूसरा सेक्शन बोलता है करो करो बोलता है। ऐसे में इसी में आपस में लड़ाते रहते हैं इन लोग। गलती तो कमीशन की तरफ से होता है, लड़ता आपस में एस्पायरेंट है, इसलिए हमेशा कमीशन जीत जाता है। और ये जो करप्शन का जो सिलसिला है, ये जो इन लोग का केयरलेसनेस है, इन लोग कभी सीखता नहीं है, एंड दिस कीप्स हैपनिंग एंड हैपनिंग हैपनिंग अगेन एंड अगेन। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे दिस टाइम नया टीम इतना फियास्को का, इतना हल्ला बोल होने का बाद में एक नया टीम आया, इसका ऊपर कुछ होप रखा था कि दिस टीम विल प्रूव समथिंग डिफरेंट, दे विल डू बेटर। But then this is the first civil services combined examination that they are trying to conduct, and you see already so many procedural lapses and inconsistencies they are already cropped up. आगे जाके कल को कुछ प्रॉब्लम्स होता है बोल के ये जो आज हमको बोल रहे कि आज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ जबरदस्ती, आप लोग को नहीं बोलना है कि आगे आके इस उसको कुछ एड्रेस करने के लिए। तो इस बार हम चाहता था कि एग्जामिनेशन शुरू नहीं होने से पहले, प्रोसेस शुरू नहीं होने से पहले 10-15 दिन का जो बफर टाइम है उसको आपस में मिल के क्लियरिटी के साथ में प्रोसीड किया जाए, ताकि आगे जाके कोई भी तसल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। एटलीस्ट एक बार अरुणाचल का एपीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का हिस्ट्री में एक एग्जामिनेशन पहली बार 1 साल का जो ड्यूरेशन में ही खत्म हो जाए और बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और हमारा जो कमीशन में लॉस्ट फेट है, ट्रस्ट जो हम लूज करके बैठे हैं, कॉन्फिडेंस जो लूज हो गया है, वो दोबारा से रिबिल्ड हो जाए। सो फ्रॉम द लुक्स ऑफ नाउ आई थिंक दिस इज नॉट हैपनिंग हियर। क्लियरली दे हैव फेल्ड and the adamance is still there, the logic is not there, procedural labs basic, they have no clarity about the rules, they are conducting examinations. I feel after having fought for this institution for a very long time, I still feel what have we achieved to get the people like them to conduct the examinations again like this. Without taking any longer, I would like to sum up here only. कोई भी अगर कल को जाके लीगली भी इसको परस्यू करता है बोलने से, जितना लोग साइन किया है और जितना लोग साइन करेंगे बोल रहा था, आप लोग सब लोग जो है एक यूनिटी होकर खड़ा करना है। वो नौबत नहीं आने से पहले अगर सब एस्पायरेंट एक साथ होकर 15-20 दिन का ऊपर नीचे करके एग्जाम्स को जुटा सकता है उनसे, वो भी कीजिए। I think since this is 15th of November today and examination as per schedule जो है 15 दिसंबर को है, that window period जो है कहीं ना कहीं हम लूज कर गया। इसी विंडो को ऑप्टिमाइज करने के लिए I was trying to have a discussion to find a resolution to these grievances with the commission, but commission has completely mishandled and mismanaged this issue. तो टुमारो कल को जाके दोबारा एस्पायरेंट के बीच में तसल होना है ना नहीं होना, आप लोग डिसाइड कीजिए। राइट नाउ मेरा हिसाब से ये होना चाहिए कि हर कोई कम से कम 15 या 20 दिन का जो एक्सटेंशन है वो होने देके बाद में आगे प्रोसीड कीजिए। तब जाके ये जो कुछ लोग बोल रहे कि मेरा एज निकल रहा है, मेरा ये बोल रहा है, तब जाके आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगा। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फॉर्म फिल करके रखा था, 15-20 दिन में स्मूथली एक साल एक बार शुरू होने का एग्जामिनेशन प्रोसेस आराम से हो सकता था। बट ड्यू टू एस्पायरेंट्स, जैसे मैंने बोला, सबसे ग्रीडी और सेल्फिश भी इन लोग ही होता है। कुछ लोग होता है उसमें रोज इस तरह की बात करने वाला, इन आप लोगों के कारण से ही हम प्रॉब्लम्स होते हैं जो कभी सोल्यूशन नहीं आ पाता है। तो टुडे यू आर डूइंग द सेम थिंग। आई होप एंड प्रे कि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में भी आगे जाके और कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसको इस समय में आप लोग अपना अपना विजडम लगा के आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। Anyone who is going or moving forward, if you need any kind of clarification, any kind of material support in terms of documentation and advice, I'll be always free, because my commitment towards a transparent, free, fair and a meritocratic APPSC is always resolute, and I shall stand by my commitment, and I shall always fight
फॉर अ क्लीन कमीशन। इतना बोल के आज का ये जो ब्रीफिंग है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है लैब सेशन का, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ इधर। एंड once again, wish you all the best. Good night and take care.